You can pray. हम प्रार्थना करेंगे। Thank you, Father, for this time you've given us. We pray that you speak to us and your Holy Spirit give us the right words, oh Father. In Jesus' name I pray. Amen. We see when Jesus came to earth, हम देखते हैं यीशु मसीह जब इस धरती पर आया, there is one thing which he wanted to establish. और एक चीज़ जो वो स्थापित करना चाहता था, The people of Israel, they always thought about a kingdom on this earth. इसराइल के लोगों ने हमेशा इस धरती के ऊपर, इस पृथ्वी के ऊपर ही एक राज्य के बारे में सोचा था, And their minds were always occupied with how can I have a better life on this earth. और उनके मन और हृदय हमेशा ही इस बात में व्यस्त रहते थे कि इस धरती के ऊपर कैसे एक बेहतर जीवन में प्राप्त कर सकता हूँ। So Jesus wanted those people to be converted, यीशु मसीह चाहता था कि ये लोग परिवर्तित हो जाए, so that their minds are not occupied with the things of this world. जिससे कि इन लोगों का मन जो है संसार की बातों के द्वारा जकड़ा हुआ न रहे। And the new covenant is not about getting a better life on this earth. नई वाचा इस संसार के ऊपर, इस धरती के ऊपर एक बेहतर जीवन प्राप्त करना नहीं है। We might have heard it many times, इस बात को बहुत बार हमने सुना होगा, but it can happen that even though we hear it, but it is not going inside. ये हो सकता है कि बहुत बार सुनने के बावजूद भी हमारे भीतर ये नहीं गया है। So we can check whether my hope or my greatest joy is in this earth or is it in heaven. हम अपने आप को जांच सकते हैं, क्या मेरी आशा या सबसे बड़ा आनंद इस धरती के ऊपर है या उस स्वर्ग की बातों में है। So on Sunday morning, while singing the songs, we all feel little joyful. रविवार को सुबह जब हम गीतों को गाते हैं साथ मिलकर, बड़े आनंद महसूस हम करते हैं। But during Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, how much of it is in our hearts? लेकिन सोमवार से लेकर शनिवार तक कितना प्रतिदिन ये गीत या जो ये आनंद हमारे भीतर होता है। Am I occupied with the things of God or am I occupied with the things of this world? और क्या मैं परमेश्वर की बातों के साथ जकड़ा हुआ रहता हूँ या इस संसार की बातों के द्वारा मैं व्यस्त रहता हूँ। It is okay to earn our living, और ये ठीक बात है, अच्छी बात है कि हम अपने पैसों को या हमारी कमाई को कमाते हैं। or as a mother we have to take they have to take care of the children and do so many things. माता के रूप में बच्चों का ख्याल रखना होता है, बहुत सारे अनेक कामों को भी करना होता है। But where is my heart? लेकिन मेरा हृदय कहाँ है? Is my heart in the things of this world, always thinking about all these things? क्या मेरा हृदय इस संसार की बातों के ऊपर लगा हुआ उन्हीं संसार की बातों के बारे में ही सोच रहा है? Or is my heart connected to God? और क्या मेरा हृदय परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ है? Am I in love with God and the things of God? क्या मैं परमेश्वर और उसकी बातों के साथ प्रेम करता हूँ? Is my treasure in heaven? और क्या मेरी संपत्ति, मेरा धन स्वर्ग के अंदर है? Jesus said in Matthew 6:19, मत्ती 6:19 में यीशु मसीह ने कहा, he said that do not store up for yourself treasures on earth where moth and rust destroy and where thieves break in and steal. और अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा न करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंग लगाते और चुराते हैं। So Jesus is saying, do not have your treasure here. और यीशु मसीह कहता है कि इस पृथ्वी के ऊपर तुम धन इकट्ठा मत करो। That means these things which we see are very temporary. इसका मतलब कि जो कुछ हम देखते हैं बहुत ही क्षण भर की है It will just pass away. और ये गुजर जाएगा। And I should not suppose if I know that a bank will just collapse tomorrow. यदि मैं जानता हूँ कि ये बैंक जो है पूरी तरह से कल गिर जाएगा, I will not put my money in that bank. तो उस धोखाधड़ी होने वाली बैंक के अंदर मैं कभी पैसा नहीं डालूंगा। In the same way, Jesus is saying everything on this earth is very temporary. इसी प्रकार यीशु कहता है संसार पर पाई जाने वाली हर बातें बहुत ही क्षण भर की है। Don't put your treasure there. और अपना धन या संपत्ति वहां मत लगाइए। But Jesus said, but store up for yourself treasures in heaven, लेकिन स्वर्ग में यीशु कहता है कि स्वर्ग में अपने धन को इकट्ठा करो, where neither moth nor rust destroys and where thieves do not break in or steal.
और जहाँ न तो कीड़ा न काई बिगाड़ते हैं, और जहाँ न चोर सींग लगाते न चुराते हैं। How can I store treasures in heaven? कैसे मैं स्वर्ग के अंदर धन को इकट्ठा कर सकता हूँ? That is by having the nature of Christ and obtaining the life of Christ more and more in my life. और यीशु मसीह का स्वभाव को प्राप्त करते हुए, और यीशु मसीह का और अधिक जीवन हमारे जीवन में प्राप्त करते हुए, By having laying hold of that eternal life. अंत जीवन को थामे हुए। So am I gripped by that? I want more of, partake more of that life of Jesus. और क्या यीशु मसीह के जीवन को प्राप्त करने के लिए मैं पूरी तरह से जकड़ा हुआ हूँ? Am I longing for it? Am I seeking for it? क्या मैं उसकी खोज करता हूँ? क्या उसको पाने के लिए मुझ में लालसा So है? today we read that verse, let your gentleness be made known to all. हमने वचन को देखा कि तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य के ऊपर प्रकट हो। See that gentleness, as we heard, we cannot produce it ourselves. हमने जिस प्रकार सुना, उस कोमलता को अपने आप से हम उत्पन्न नहीं कर सकते But हैं। am I seeking for that life of Jesus which can bring that real gentleness in me? लेकिन क्या मैं यीशु मसीह के जीवन की खोज कर रहा हूँ कि जो मेरे जीवन के अंदर उस कोमलता को ला सकता है? So have I become the way I speak at home और जिस प्रकार मैं घर पर बात करता हूँ, and the way I used to speak maybe 5 years ago, और जिस प्रकार मैं पहले 5 साल पहले बात करता था, has it changed, or is it the same way, the same hurtful way I'm speaking today also? और क्या उसमें अंतर है? क्या आज भी मैं उन चोट पहुंचाने वाले शब्दों के साथ ही बात करता हूं? Has my speech become more gentle? और क्या मेरा बात करने का तरीका और कोमल हुआ है? And that shows that how much am I seeking God and His character in me. ये दर्शाता है कि मैं कितना अधिक परमेश्वर और उसके चरित्र को मुझ में खोजता हूँ। So if I lose some money, और यदि मैं कोई पैसा खो बैठता हूँ, or if I don't get a promotion in my work, मेरे काम की जगह पर मुझे प्रमोशन नहीं मिलता or है, in 1 year I don't get an increment, और 1 साल के अंदर मुझे बढ़ोतरी या इंक्रीमेंट नहीं मिलता है, I will be so much tensed that this year there is no increment. मैं बहुत ही चिंता में आ जाऊंगा कि इस बार कोई पैसा नहीं बढ़ रहा है, कोई इंक्रीमेंट नहीं है। But if I don't grow in the Lord, or if I don't grow in His character, am I having that grief in my heart? लेकिन उसी प्रकार यदि मैं परमेश्वर में नहीं बढ़ रहा हूँ, उसके चरित्र में नहीं बदल रहा हूँ, उस प्रकार का खेद या वेदना मेरे हृदय के अंदर पाई जाती है। So I am just telling all this to show that our heart is in the world and not seeking the things of God. और ये दर्शाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा हृदय संसार के अंदर लगा हुआ, न कि परमेश्वर की बातों की खोज कर रहा है। We have to come to God and ask Him to create that hunger for Him. और परमेश्वर के पास आकर हमें मांगने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर उस भूख को वो पैदा करे। That means I don't want to seek continually the things of the world and think about it. इसका मतलब मैं निरंतर संसार के बारे में, संसार की चीज़ों के बारे में सोचते नहीं रहना चाहता। I don't want to constantly worry about how can I get a better increment or job or something like that, but I want to think about the things of God. मैं निरंतर कैसे मैं एक नौकरी अच्छी पा सकता हूँ, कैसे मैं उसके अंदर बहुत बढ़ोतरी इंक्रीमेंट प्राप्त कर सकता हूँ, वो नहीं, लेकिन निरंतर परमेश्वर के बारे में सोचना चाहता But हूँ। I can work at the best level which God has given me a job. I can do it the best at there. और परमेश्वर ने जो नौकरी मुझे दी है, मेरा सर्वोत्तम प्रयास करके मैं वहाँ पर काम जरूर कर सकता हूँ। But am I just like the people of the world, always thinking about it and my heart totally engrossed in it? और क्या मैं संसार के लोगों के समान हमेशा पूरी तरह से काम के बारे में सोचता हूँ? मेरा हृदय पूरी तरह से उस काम के इर्द गिर्द ही लगा हुआ रहता See, है। the people of the world constantly worry about all these things. संसार के लोग निरंतर लगातार इन चीजों के बारे में चिंता करते रहते हैं। But if I am like that, then my hope is not in God. और यदि मैं भी उसी के समान हूँ, तो मेरी आशा परमेश्वर के ऊपर नहीं है। In verse 24, Jesus said, "No one can serve two masters." और 24 वचन में यीशु कहता है कि कोई भी मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। For either he will hate the one and love the other, वह एक से बैर रखेगा और दूसरे से प्रेम रखेगा, or he will be devoted to one and despise the other. एक से निष्ठावान रहेगा और दूसरे का तिरस्कार करेगा। Then Jesus says, you cannot serve God and wealth. तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। So I have to make a choice, not just concerning sin and God, और यहाँ पर मुझे चुनाव करना है परमेश्वर और पाप उसके भीतर ही नहीं, but God and wealth. और पैसा और धन दोनों के बीच में। What is my master?
और मेरा स्वामी आज कौन है। See, many times we know that we have to avoid sin. कई बार हम ये जानते हैं कि हमें पाप से बचना है, We have to be pure and all, we know that. हम जानते हैं कि हमें शुद्ध रहना, ये सारी बातों को, But we don't consider wealth as something which is against God. लेकिन कई बार वो पैसा या धन जो परमेश्वर के विपरीत है, उस प्रकार पैसों को हम नहीं देखते हैं। That means if I am attached to my wealth, I cannot love God. इसका मतलब यदि मैं अपने पैसे या धन संपत्ति से जुड़ा हुआ जकड़ा हुआ रहता हूँ, तब मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। Either I will be devoted to my wealth or I will be devoted to God. मैं एक समय पर केवल मेरे पैसों के प्रति निष्ठावान रह सकता हूँ या परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य रह सकता हूँ। So that is where we need to turn. There should be a turning in our hearts from our minds, where I am totally focused on wealth towards God. और यही जगह जहाँ पर हम पूरी तरह से पैसा या धन के ऊपर अपने मन को लगाए, वहीं से हमें पूरी तरह से फिर कर परमेश्वर की ओर लौटना है। It can happen that when we had less of wealth, we used to be more interested in God. और हो सकता है कि जब हमारे पास कम पैसा या संपत्ति थी, तब हम ज़्यादा परमेश्वर में रुचि रखते थे। Did the wealth take away our love of God from our और hearts? क्या यह पैसा या धन संपत्ति ने हमारे हृदय से परमेश्वर के प्रेम को ले लिया है? It says in verse 25, "For this reason I say to you, do not be worried about your life." और 25 वचन में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, अपने प्राण के लिए चिंता न करना। See, what Jesus said is, when you serve wealth, by default you will get worry. और यीशु मसीह कहता है कि जब तुम इस संसार और धन संपत्ति के प्रति बहुत ही निष्ठावान या उसके प्रति समर्पित रहोगे, तो बहुत ही आसानी से आपके पास चिंता मिल जाएगी। That is why Jesus said, "For this reason I say to you that do not be worried about your life." और इसी कारण यीशु कहता है, मैं कहता हूँ कि तुम्हारे प्राण या अपने जीवनों के लिए चिंता न करो। That means if I am worried, that shows that I am serving wealth. इसका मतलब कि यदि मैं चिंता में हूँ, इसका मतलब मैं धन या संपत्ति की सेवा कर रहा हूँ। As to what you will eat, what you will drink, nor for your body as to what you will put on. और हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे और अपने शरीर के लिए क्या पहनेंगे। See, we have crossed that we have enough money to eat and drink and all. और शायद हमारे पास बहुत ही पर्याप्त पैसा है ताकि हम अपने खाने पीने का ध्यान रख सके। And we also have money to buy clothes also. हमारे पास इतने पर्याप्त पैसे भी है ताकि हम शरीर के लिए वस्त्र को खरीद सके। But our worries are much beyond that. Like, how can I get a promotion? How can I get a new? Many things like that, or many things of the world which occupy our mind. लेकिन हमारी चिंता इन सब बातों से बढ़कर है, कैसे मैं एक प्रमोशन को प्राप्त कर सकता हूँ। संसार की अन्य बातों की चिंता हमारे मन को ग्रसित कर लेती है। And that is why we don't have the joy of the Lord in our hearts. और इसी कारण हमारे हृदयों में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। We are not hoping for another kingdom. और हम दूसरे राज्य की आशा नहीं कर रहे हैं। We are we look at the animals which just look down all the time. और हम उस जानवरों के समान बन जाते जो हमेशा नीचे ही देखते रहते We are हैं। not able to look at the better kingdom which God has prepared for us. और जो परमेश्वर ने बेहतर राज्य हमारे लिए बनाया, उसकी ओर हम नहीं देख पा रहे हैं। Not only that, Jesus said that kingdom of God is within you. पर उतना ही नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। That means I have to seek God's kingdom here on this earth. इसका मतलब इस संसार के अंदर ही मुझे परमेश्वर के राज्य की खोज करना है। In verse 32 it says, "For the Gentiles eagerly seek these things." 32 वचन में लिखता है, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु की खोज में रहते हैं। They will fight and they will quarrel for these things. इन सारी बातों को प्राप्त करने के लिए वे झगड़ेंगे। They will always fight for money and property and all these things. They will have their hearts into that. और हमेशा पैसे या धन संपत्ति, इन सारी चीज प्रॉपर्टी के लिए वे झगड़ते रहेंगे। उनका मन उसी के अंदर लगा हुआ रहेगा, Because that is their main goal of their life. क्योंकि यही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य बन चुका है। But have I made that the main goal of my life? लेकिन क्या मेरे जीवन का भी यही मुख्य उद्देश्य आज बन चुका है? If that is it, then we have to turn towards the right goal. We have to turn towards Christ. यदि ऐसा है तो हमें एक सही उद्देश्य, लक्ष्य जो है, जो यीशु मसीह, उसकी ओर हमें मुड़ने की आवश्यकता आज Like है। we turn from our sin to Christ. और जैसे अपने पाप से मुड़कर हम यीशु मसीह की ओर लौट पाते हैं। There is a need in our lives, even in my life, I saw that to turn from these earthly things to
again dedicate our lives to God. और उसी प्रकार मैं मेरे अपने जीवन के अंदर भी उस आवश्यकता को देखता हूँ कि संसार की बातों से पूरी तरह से मुड़कर यीशु मसीह की ओर और अपने आप को समर्पित करने की आवश्यकता आज है। In verse 33 it says, "But seek first the kingdom of God and his righteousness." और 33 वचन में लिखता है, इसलिए पहले तुम उस परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो। Am I seeking God's kingdom first? और क्या मैं पहले सबसे प्रथम परमेश्वर के राज्य को खोज रहा हूँ? Is if somebody, if my children look at me, will they say that, oh, God, he's for him, seeking God is the most important thing? और क्या मेरे बच्चे मुझे देखकर ये कह सकते हैं कि मेरे पिता के लिए परमेश्वर को खोजना ही सर्वप्रथम या सर्वोत्तम बात है? Or is it just a talk that we have on Sunday mornings? और क्या ये केवल रविवार को होने वाली केवल बातचीत के अंदर ही सीमित रह जाता है? See, some people in the old covenant, although they lived, but they had the spirit of not seeking the world. पुराने नियम में हम देखते हैं कि कई लोग ऐसे पाए जाते हैं कि उनके अंदर संसार को न खोजने की आत्मा थी। We read about Noah, how he lived. नूह के बारे में हम जानते कैसे उसने जीवन जिया। We read in Hebrews chapter 11. इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय We read from verse 7. 7 वचन से आगे। By faith, Noah, being warned by God about the things not yet seen, in reverence, prepared an ark for the salvation of his household, by which he condemned the world and became an heir of the righteousness which is according to faith. विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धार्मिकता का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। So if you think about Noah, I'm sure that he earned his living. हम नूह के बारे में जब हम सोचते हैं तो मैं निश्चय ही मानता हूं कि उसने अपने रोज की आमदनी या अपने कमाई को कमाया होगा। But his total dedication was to building that ark. लेकिन उसका संपूर्ण समर्पण उस जहाज को बनाने के लिए था। He was so committed that all his children joined him in building the ark. इतना समर्पित वो था कि यहाँ तक उसके सारे बच्चे उस जहाज को बनाने में उसके साथ जुड़ गए। They knew that their dad knows that this world will not last. वे जानते थे बच्चे कि उनका पिता जो है वो जानता है कि ये संसार हमेशा नहीं बना रहेगा। It means to him, it means something to him. और ये बात उसके लिए बहुत ही मायने रखती है। It is not something which he just preaches. और इतना ही नहीं कि केवल वो इस बारे में प्रचार ही करता है। He's toiling, he's spending his money, he's spending his efforts, all day he's working towards building the ark. और बड़ी कड़ी मेहनत कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा सारे प्रयत्नों को कर रहा है पूरे दिन भर उस जहाज को बनाने के लिए। So am I having that type of commitment and that type of love towards God? क्या इसी प्रकार का परमेश्वर के प्रति समर्पण और प्रेम मेरे पास भी है? Am I looking forward to the kingdom which God is preparing for us? और इसी प्रकार जो परमेश्वर मेरे लिए राज्य बना रहा है, क्या उसकी तरफ इसी प्रकार मैं देख पाता हूँ? Like Noah, he knew that this world is going to perish. और नूह के समान वो नूह जानता था कि ये संसार नाश होने वाला है। Have I looked at this world and all the things which I have and I have said this is going to perish? क्या मैंने नूह के समान ही मेरे पास आसपास की सारी चीजें, संसार की चीजें नाश होने वाली है, उस प्रकार देखा है? So we need to ask God to open our eyes. हमें मांगने की आवश्यकता है कि प्रभु हमारी आंखों को खोले। In Corinthians there is a verse which says the God of this world has blinded our eyes. और कुरिन्थियों के अंदर वचन कहता है कि संसार के परमेश्वर ने उनकी आंखों को अंधा कर दिया है। We can only see so far, we can't see beyond. और हम केवल थोड़ी दूरी तक ही देख पाते, ज्यादा दूर तक नहीं देख पाते हैं। In Philippians chapter 3, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय verse 18. 18 वचन। It says, Paul is talking about some people. पौलुस यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में बात कर रहा है। It says, for many walk, of whom you
I often told you, and now I tell you, even weeping, for they are the enemies of the cross of Christ. क्योंकि अनेक लोग ऐसी चाल चलते जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की और अब भी रो कर करता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी है। So when we hear that somebody is an enemy of the cross of Christ, जब हम सुनते कि कोई व्यक्ति मसीह के क्रूस का बैरी या शत्रु है, we feel that he is something who is against Christ, who doesn't want Christ to be preached anywhere. और हम सोचेंगे ये बैरी केवल वो मसीह का विरोधी है जो मसीह का प्रचार हर जगह पे नहीं करना चाहता है। He's out to persecute people who are Christians. वो जो मसीही लोग हैं उनको सताव करने के लिए वो प्रयास कर रहा है। But that is not the people Paul is talking about here. पौलुस ऐसे लोगों की बात यहाँ नहीं कर रहा है। He says, whose end is destruction, whose God is their appetite, and whose glory is in their shame, who set their minds on earthly things. लेकिन पौलुस उनके बारे में कहते हैं कि उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है, वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। So their God is their appetite. और यहाँ पर उनका ईश्वर जो है उनका पेट उनका ईश्वर बन चुका That means they है। are living for the stomach. वो अपने भूख या अपने पेट के लिए ही जीवन जीते हैं। They say that in Hindi they say क्या करूँ, पेट का सवाल है. और हिंदी में जैसे कहावत है तो ये सारा पेट का सवाल है। So they do everything for their stomach. और इसका मतलब वो अपने पेट के लिए ही सारी चीजों को करते So हैं। if it's question of my stomach, I can lie, cheat, tell lies, do everything. और यदि मेरे पेट का सवाल आता है तो मैं हर चीजें करता हूँ, मैं झूठ बोलता हूँ, मैं धोखाधड़ी करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। So that is the spirit of the world. और यही संसार की आत्मा है। And then it says, whose glory is in their shame. और लिखा है कि वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं। That means I glory in the things of the world. इसका मतलब संसार की बातों के ऊपर मैं घमंड करता हूँ। I glory in the position I hold in the office. ऑफिस के अंदर जो मेरा पद है उसके ऊपर मैं बड़ा घमंड करता हूँ। I glory in the house which I have. जो घर मेरे पास है उसके ऊपर मैं घमंड करता I हूँ। glory in all the things of the world which I have occupied, I have in my heart. और ये सारी संसार की बातें जो मैंने प्राप्त की है मेरे हृदय में पाई जाती उस पर मैं घमंड बड़ा करता हूँ। And they have set their minds on earthly things. और पृथ्वी की वस्तु पर अपने मन को लगाए रखा है। So we should ask God to remove that longing in our hearts for earthly things and set our minds on things above. और परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है कि पृथ्वी की वस्तु पर जो मन लगा उससे हम दूर करके परमेश्वर की बातों के ऊपर अपने मन को लगा We should सकें। ask God to open our eyes so that we can see what God has kept for us. परमेश्वर से मांगे कि हमारी आंखों को खोले ताकि परमेश्वर ने रखी हुई बातों को हम देख सकें। Jesus said that kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field. यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का राज्य उस खेत में छुपाए हुए उस खजाने के समान है। So when one man saw it, जब एक व्यक्ति ने उसको देखा, so first thing is I have to see the treasure. सबसे पहले मुझे उस खजाने को देखने की बात है। I have to see what is the life of Jesus. मुझे देखने की आवश्यकता है यीशु मसीह का जीवन क्या है। What is the fellowship with Christ? What is the joy of fellowship with Christ? I have to see that. यीशु मसीह के साथ संगति का आनंद क्या है उसे मुझे देखने की आवश्यकता I है। have to see what the peace, joy in the Holy Spirit is. और पवित्र आत्मा में जो शांति और आनंद है वो क्या उसको जानने की आवश्यकता मुझे है। So when I see that, then Jesus said he sold all that he had and he said I will buy that field. और यीशु वहाँ पे कहता है कि जब उस व्यक्ति ने उन सारी बातों को धन को देखा, सारी बातों को बेचकर उस खेत को, उस जमीन को उसको खरीदने का निर्णय So उसने he किया। understood that the treasure which he saw was more valuable than the things of the world. और उस व्यक्ति ने ये बात को समझ लिया कि संसार से कई गुना बढ़कर उस संपत्ति जिसको उसने देखा था वो बहुत ही मूल्यवान है। So there is a need for God to open the eyes so that we can see. इसलिए हमारी आंखों को परमेश्वर खोले उसकी आवश्यकता आज हम ताकि हम देख सके। Like that blind man came to Jesus and said, Jesus have mercy on me. और अंधा व्यक्ति यीशु मसीह के पास आकर जिस प्रकार कहता है कि प्रभु यीशु तू मुझ पर दया कर। And Jesus asked him, what do you want? यीशु मसीह उससे पूछता है कि तुझे क्या चाहिए? And he said that I might see. और मैं देखना चाहता हूँ। And that is what Jesus also wants us to come to him and say, Lord, I want to see. और यही यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके पास आकर पूछे और कहे कि मैं देखना चाहता हूँ। In verse 20 it says, for our citizenship is in heaven. और 20 वचन की हमारा स्वदेश जो है स्वर्ग में है। And
from which we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ. और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की प्रतीक्षा करते हैं। So, am I eagerly waiting for my Savior, Lord Jesus Christ? और क्या बड़ी आतुरता के साथ मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की मैं राह देखता हूँ? Am I saying, Jesus, come soon? और क्या मैं कहता हूँ प्रभु यीशु तू जल्द आ? Am I saying, Lord, let all these things I'm attached to, I don't want to be attached to them? और क्या मैं कह पाता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो इस संसार की उन सब से मैं जुड़ा नहीं रहना चाहता? Because Jesus said that when that day comes, when He comes back, यीशु मसीह ने कहा कि जब वो आएगा उस दिन it will be a snare to many people. कई लोगों के लिए एक फंदा होगा वो। That means they were so trapped and so engrossed. It will be like the days of Noah. और उस नूह के दिन के समान होंगे, बहुत सारी बातों के अंदर जकड़े हुए होंगे उस फंदे के समान। It will be like the days of Lot. और वो लूत के दिनों के समान होगा। People were buying and selling and getting married and given marriage. All those things of the world were occupying their mind. और सारे लोग जो है वो खरीदारी कर रहे होंगे, बेच रहे होंगे, संसार की बातें, वो विवाह कर रहे होंगे, संसार की सारी बातों से वो पूरी तरह से ग्रसित होंगे। And then suddenly the day came and it came as a trap to them. और अचानक से वो दिन आ जाता है और एक फंदे के समान वो दिन उन पर आ पड़ता है। So here Noah is an example for us. और नूह यहाँ पर हमारे लिए एक उदाहरण है। But at the same time we look at the life of Lot. और उसी के साथ हम लूत का जीवन जब देखते हैं, He always had his mind on earthly things. उसका मन हमेशा इस संसार धरती की बातों के ऊपर ही लगा हुआ था। He focused on this earth and making money and everything on this earth. He made his ambition on this earth. और ये धरती के ऊपर उसने अपने मन को लगाया था कि अपनी महत्वाकांक्षा धरती के ऊपर कैसे पैसा अधिक कमाया जाए, किस तरह से धरती का धन लिया जाए, उस पर ही था। So we see that although God had mercy on him, और हम देखते कि यहाँ तक परमेश्वर ने अपनी दया उस पर दिखाई, but he could not convince his children about the things of God. लेकिन यहाँ तक वो अपने बच्चों को परमेश्वर की बातों के लिए वहाँ पर उनको सिखा नहीं पाया, उनको रूपांतरित नहीं कर पाया। So when he started telling about God to his children or his son-in-laws, और जब उनके जो दामाद जो थे उनको परमेश्वर के बारे में जो बताना आरंभ किया होगा, it seemed like a joke to them. उनको ये एक मजाक सा जान पड़ा। Because they said all this time this man was speaking about money and material things and going ahead in this world. और इस दामाद ने घर के लोगों ने सोचा होगा ये व्यक्ति हमेशा पैसों के बारे में, संपत्ति और भौतिक संसार की बातों के बारे में ही बात करता रहा है। Suddenly he is saying about God and judgment and all. और अचानक से ये व्यक्ति परमेश्वर उसके न्याय के बारे में अब बात कर रहा है। Has this man gone crazy? What's wrong with him? और क्या ये व्यक्ति पागल हो गया, इसके साथ क्या तकलीफ है? So if my life is not lived, then tomorrow my children will not follow me. यदि आज मैं अपने जीवन को उस प्रकार नहीं जीता हूं तो कल उठ के मेरे बच्चे भी उसका अनुसरण नहीं करेंगे। They will not just look at what I am saying. मेरे बच्चे कभी भी मैं जो बोलता हूं उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। But what is my heart attached to? That is what they are saying. लेकिन वो ये देखते हैं कि माता पिता के रूप में हमारा हृदय किस बात से जकड़ा या जुड़ा हुआ है। We can pray that God will bring a change in our hearts. हम यही प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमारे हृदयों में एक बदलाव को लेकर आ, and we will turn to God and will seek the things of God. ताकि हम परमेश्वर की ओर मुड़ सके और परमेश्वर की बातों को देख सके। In 1 Peter chapter 1, पहला पत्रस पहले अध्याय में in verse 1, पहला वचन, it says, Peter, an apostle of Jesus Christ, to those who reside as aliens scattered throughout Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, Bithynia. पत्रस की ओर से जो यीशु मसीह का प्रेरित है उन परदेशियों के नाम जो पुंतुस, गलातिया, कप्पदूकिया, आसिया और बितुनिया में तितर बितर होकर रहते हैं। So he is addressing those believers as aliens. और यहाँ पर उन सारे विश्वासियों को एक अजनबी के रूप में वो यहाँ पर या परदेशी के रूप में यहाँ पर संबोधित करता है। That means that term was so much engrossed in their heart. और ये शब्द जो है उनके हृदय में इतना जड़ा हुआ था that they do not belong to this world. कि वे लोग संसार के नहीं हैं। Our kingdom is not of this world. और हमारा संसार, हमारा राज्य संसार का नहीं है। That Paul used to address them as aliens.
पौलुस उनको जो है पतरस उनको एक Sorry, परदेसी के Peter. रूप में जानता था। As pilgrims, that they have a very temporary home here. और जो एक यात्री होते हैं कि क्षण भर का क्षणिक घर उनका इस संसार में होता है। In 1 Timothy chapter 6, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय and from verse 6, it says, "But godliness actually is a means of great gain when accompanied by contentment." पर संतोष सहित भक्ति एक बड़ी लाभ है। So, if I am having contentment, और यदि मेरे अंदर संतुष्टि है, that means I am content with the things of the world which God has given me. संसार के अंदर परमेश्वर ने जो भी बातें जो मुझे दी है, I am content. मैं उसके साथ संतुष्ट हूँ। I am not looking, my heart is not constantly longing for more and more. और मेरा हृदय लगातार और भी मुझे अधिक चाहिए उसकी लालसा, उसकी खोज नहीं कर रहा है। I'm not looking that, oh, if I get that thing also, I will be happy. और मैं ये नहीं सोच रहा कि यदि मुझे वो चीज़ मिल जाएगी तो मैं आनंदित या खुश रहूँगा। और I am content with what God has given me today. और आज परमेश्वर ने जो कुछ मुझको दिया है उसके अंदर मैं संतुष्ट हूँ। I'm not constantly saying, oh, I lack this, I lack that, I lack this. I'm not constantly looking around and saying, oh, if I wish I had that. मैं निरंतर आसपास देख के ये सोचने की कोशिश करना नहीं चाहता कि काश मेरे पास ये होता, मेरे पास वो होता, काश मैं वो भी प्राप्त कर पाता। In verse 7 says, we brought nothing into the world and we cannot take anything out of it either. वचन 7 में लिखा है, क्योंकि न हम जगत में कुछ लाए हैं और न कुछ ले जा सकते हैं। It says, if we have food and covering, with these we shall be content. और 8 वचन, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को है तो इन्हीं पर हम संतोष करना चाहिए। So we can ask God to make that true in our lives. हम प्रभु से मांगे कि हमारे जीवन में ये बात सच हो। If I have the basic necessities of life, I'll be content with that. और यदि मेरे पास मेरी मूलभूत नींव की जो ज़रूरत है वो मेरे पास यदि है तो मैं उसमें संतुष्ट रहूं। And it says in verse 9, but those who want to be rich fall into temptation and snare and many foolish and harmful desires which plunge men into ruin and destruction. वचन 9 में लिखा है, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। So am I in the category of those who want to be rich? क्या मैं उन श्रेणी के अंदर आता हूँ, उन लोगों के में गिना जाता हूँ जो धनी होना चाहते हैं? It's not talking about, we should not think about it is talking about this person or that person. और यहाँ पर उस व्यक्ति फलाने व्यक्ति के बारे में नहीं सोचना है। I have to think, Lord, am I pursuing that I want to be rich? I'm thinking about being rich all the time. और क्या मैं निरंतर एक धनवान होने के बारे में ही सोचते रहता हूँ? And the word of God says that I will fall into temptation. परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं परीक्षा में तब पड़ूंगा, I will fall into snare. और मैं फंदे में पड़ूंगा, I will fall into many foolish and harmful desires. बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में मैं फंसता रहूंगा। And it says I will be destroyed and I will be ruined. पूरी तरह से मैं मुझको बिगाड़ देगी और मेरा नाश कर देगी। So there can be we might say, oh, I am not doing anything harmful. I'm just for pursuing money. और हम कह सकते हैं कि मैं केवल पैसे की ही खोज कर रहा हूँ, मैं कोई हानिकारक ऐसी कोई बातें नहीं कर रहा हूँ। But am I now? Do you see that coldness in our hearts? क्या अपने हृदय के अंदर एक ठंडेपन को हम देख सकते हैं? Because the love of God has been replaced by love of money. क्योंकि परमेश्वर के प्रेम को अब धन के प्रेम से पूरी तरह से बदल दिया गया है। And that is why it says in Colossians that flee from covetousness, which is idolatry. और इसीलिए कुलिस्सियों की पत्री में लिखा है कि वो लालसा करने वाली, लालच करने वाला जो एक मूर्ति पूजा के समान है, उससे तुम दूर रहो। So that is what do I have that idolatry in my heart? और यही मुझे जांचना है, क्या मेरे हृदय के अंदर एक मूर्ति कोई है? Am I constantly thinking about money and making more money? क्या लगातार मैं पैसों के बारे में ही सोचता रहता हूँ कि कैसे मैं और अधिक ज़्यादा पैसा बना सकता हूँ? In
in the same chapter, verse 17, it says, उसी अध्याय के 17 वचन में लिखा है, it says, instruct those who are rich in this present world not to be conceited or fix their hope on the uncertainty of riches, but on God who richly supplies us with all things to enjoy. और इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी न हो और अनिश्चित धन पर आशा न रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। So, the things of the world are very temporary. संसार की बातें जो है बहुत ही कम समय के क्षण भर के लिए है, I cannot fix my hope there. और मेरी आशा को वहां नहीं लगा सकता मैं। In Hebrews, I think chapter इब्रानियों 13, की पत्री Hebrews chapter 12, the last इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय अंतिम 20 वचन। 27, from 27 we read, says this expression yet once more denotes the removing of those things which can be shaken as of created things, so that those things which cannot be shaken may remain. वचन 27 से आगे, और यह वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तु होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तु हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहेगी। So if I am hoping in the things of this earth, the things of this earth will be shaken. यदि मैं इस संसार की बातों के अंदर ही आशा लगाए रहता हूँ, ये संसार की बातें एक बार हिलाई जाएगी। But if my hope is in God, I will never be shaken. यदि मेरी आशा परमेश्वर के ऊपर लगी है तो मैं कभी भी वो अटल बनी रहेगी, कभी हिलाई नहीं जाएगी। In verse 28 it says, therefore since we receive a kingdom which cannot be shaken. 28 वचन में लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाते हैं जो कभी हिलने का नहीं। So we are looking forward to a kingdom which cannot be shaken. और हम ऐसे राज्य की खोज करते जो कभी हिलाया नहीं जा सकता। We have a very blessed hope which we should not lose for the kingdom of this world. और इस संसार के राज्य के खातिर उसके वजह से हमें जो हमारे लिए एक धन्य आशा जो है उसको हमको नहीं खोना है। In 1 Peter 1:4 we read, to obtain an inheritance which is imperishable, undefiled and will not fade away, reserved in heaven for you. और अर्थ है एक अविनाशी, पहला पत्रस 1:4, अर्थ है एक अविनाशी निर्मल और अजर विरासत के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। So we have an eternal, unperishable and eternal hope to receive a kingdom which is coming. और हमारे लिए एक अविनाशी निर्मल एक अजर विरास एक ऐसी आशा है जो परमेश्वर का राज्य है हमारे लिए। And we can ask God to open our eyes to see it more clearly. परमेश्वर से मांगे कि प्रभु हमारी आंखों को खोल ताकि बड़ी साफ रीति से उसको हम देखने पाए। Amen. आमीन।